our guest, Mrs. Archana Jain. Well, firstly, I would like to explain you about Plan to Win. Plan to Win is a group which is started by Darshana Falke, who is an academic mentor by profession and a participant of team management and leadership program. The intention of this program is power, freedom, and accomplishments in our life. With a vision and mission to accomplish our goals, we are on a road to success, right? So, here, let me talk about Archana Jain. Archana Jain is a very well known dietitian and a counselor for various diseases. She is a therapeutic, she is therapeutic counseling does for uh, cancer, for diabetes, for blood pressure, for PCOD, and all other various diseases. She is a award-winning dietitian, and she has been into various forums like 40 and Women's Mentoring Forum. She's an executive chair. She has been awarded in different various platforms. So I would like to welcome right now to you, Mrs. Archana Jain. Here to you, Archana Jain. Thank you, Seema. Thank you so much. And thank you, Plan to Win, for inviting me for this session. Seema, have we played the video or? Yes, we have played the video. Yeah. So. Okay. So, good morning, everyone. Good morning. Okay. Good so, morning. Good morning, Archana. Good morning. Good morning. Good Welcome. morning. Yeah. So I know many people, but then so many of us are meeting for the first time. So it's let's begin with the concept. Like today we are talking about the diseases, as we all know that we are into a pandemic which is going on. So the word disease, gives us, it frightens us, and it is like it's a dreaded word now. So we don't want to talk about diseases, but then we must understand. So there's a silver lining about this word. We must understand that 90% of the diseases in this world are all curable and reversible. So it's like the common concept of disease is like whenever we have anything, we name it as disease, and then we start thinking that we have got something which will never cure, or we will finally die with this disease. Be it any common disease, any ailment, any disorder. I would like to now talk about the kind of inflammation that our body get. So होता क्या है कि whenever we get any infection or any bacteria or virus or any pollution, there are two types of diseases. Like one that we get from an outside agency, like these bacteria and viruses and fungi and algae and so many disinfectants and so many pollutants and preservatives and artificial chemicals. So we get these disorders from outside, and then many of these diseases we only develop from inside because of the malfunctioning of our body system. When we are not following a very good routine or a lifestyle, what happens is like it's like any other industry or any other factory or any other computer. If it is not handled properly, it will go haywire and finally result in some kind of disorder. So this is what we also do with our own bodies.
हम लोग क्या है कि जो लाइफ के जो बॉडी की साइंस है, जो नॉर्म्स है, उनको ठीक से अगर फॉलो नहीं कर पाते हैं तो बॉडी स्टार्ट्स reverting back. It is telling us कि okay, everything is not going right. इसमें बहुत सारी तरह की इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी डाइट में किसी तरह की डेफिशिएंसी है, तब हमारी बॉडी मैल फंक्शन करती है। अगर हम लोग कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तब बॉडी मैल फंक्शन कर सकती है। स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा रीजन है। स्ट्रेस से बॉडी बहुत ज्यादा मैल फंक्शन करती है। स्ट्रेस से हमारे सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उसमें उसको एक्चुअली बॉडी ज्यादातर जो हमारे मिसडीड्स होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए अपने आप को चेंज करती है। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो। डायबिटीज भी क्या है, पैनक्रियाज को अगर हम एक इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री के जैसे सोचें, एंड आप उसको ओवरलोड करते जाते हैं। अगर हम किसी फैक्ट्री को भी, अगर वो उसके सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, द मशीनरी इज नॉट वर्किंग वेल, जो फाइनेंस है वो ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो आप देखिए कि कोई भी फैक्ट्री का जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं हो सकती है। वो फाइनली कुछ ना कुछ उसमें या तो वो बंद हो जाएगी या वो ठीक से नहीं चल सकती है। वो आपको जो मतलब प्रॉफिट्स नहीं दे सकती है। इसी तरह से अगर अगर हमारा पेनक्रियाज भी अगर एक फैक्ट्री है और हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं विद लॉट ऑफ शुगर, विद लॉट ऑफ बहुत सारी और प्रिजर्वेटिव्स, और हमारी बॉडी को नहीं ठीक से मिल रहे, तो हमारे अगेन वो पैनक्रियाज ओवरलोड होके वो उसका पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन बनाना। अगर वो नहीं प्रॉपर नहीं बना पा रहा है, उसके पास ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं और वो नहीं उसको कंप्लीट कर पाता, थोड़े दिन में सब थक जाते हैं और एम्प्लॉयज कहते हैं कि भाई अभी हमसे नहीं होगा, तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। और इंसुलिन बंद कर देता है तो वो हमको डायबिटीज के रूप में वो सामने आता है ना। तो ये सब ये डिजीजेस एक्चुअली डिजीजेस नहीं है, दीज आर नॉट परमानेंट। ये बात बहुत अच्छे से सबको समझनी चाहिए कि ये चीजें सब रिवर्सिबल हैं हमारी बॉडी में। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, एवरीडे बेसिस पे आई कम अक्रॉस पीपल हु आर सफरिंग विद कॉन्स्टिपेशन फॉर 12 years। आई मीन 12 years से आप कॉन्स्टिपेशन भी अपना ठीक नहीं कर पा रहे हो। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ डिजीज, दिस इज जस्ट अ कंडीशन कि अगर बॉडी में इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और आप समझ सकते हैं कि अगर बॉडी में हम जो खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो कितनी सारी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। सो ये ऑल दीज ये कंडीशंस जो है, दिस विल लीड टू अ परमानेंट डैमेज। जो डिजीज होती है वो परमानेंट डैमेज की जैसे वो कंडीशंस बहुत बाद में आती हैं। सो हम जिस जो अर्लियर स्टेज होती है, ये जो बेसिक बेसिक हमारी बॉडी की कंडीशंस होती है, इनको हम सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? आजकल देयर इज अ वर्ड इम्यूनिटी। अब हमने कोरोना के टाइम में सबने ये समझ लिया है कि इम्यूनिटी इज द वर्ड। अभी इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी रहेगी तो इम्यूनिटी इज द फाइटिंग पावर ऑफ आवर बॉडी। हमारे वो सैनिक हैं, हमारे लिए वो लड़ते हैं। हमारे ऊपर अगर कोई भी डिजीज या कोई मैल फंक्शन कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, तो उससे लड़ने के लिए बॉडी में ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बना हुआ है। बॉडी में हमारी बॉडी अपने आप में पूरा एक हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, सब कुछ सारा इलाज हमारी बॉडी में ही है।
इट इज जस्ट द मैटर ऑफ उसको पहचानना और उसको यूज करना। तो जो इम्यूनिटी है वो हमारा वही डॉक्टर है जो कि हमको हर चीज से बचाता है। अगर हमको कोई एलिमेंट हो गया है, कोई डिसऑर्डर हो गया है, तो उसको भी करेक्ट करने के लिए हमें अपनी पावर, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको इंक्रीज करना होता है। इम्यूनिटी जो वर्ड, जो बाय डेफिनेशन is a condition of being able to resist a particular disease, especially through preventing development of pathogenic microorganism or by contracting the effects of its products. In simple words, immune system is what protects your body from disease and infections. अब ये है कि ये इम्यूनिटी हम कैसे समझें। सो इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है, हॉर्मोन्स का एक नेटवर्क है। उसके बेसिस पे वो हमारे लीडर्स हैं, वो हमें सारा गाइड करते हैं कि कौन से ऑर्गन को किस किस तरफ जाना है, क्या करना है, कैसे चलना है। तो उनका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। दीज हॉर्मोन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, लेकिन वो सभी बहुत सारी चीजों से मिलके बनते हैं और सारा बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। So what we have to do is like we have to follow a very good balanced diet. But then diet is only one part of the immunity. As we say, it's all body, mind, and soul. Together we have to consider it. So diet plays a very important role in this. So whenever I talk about disease reversal भी जब हम बात करते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स ये जो हैं खत्म हो सकती हैं, तो यस, ये सब खत्म हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें एक बहुत अच्छी डाइट को फॉलो करने की जरूरत है। उसके साथ में अच्छा सा एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपको पानी पीना चाहिए। आपको नींद बहुत जरूरी पार्ट है। नॉर्मली लोग अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे ज्यादा जो जैसे हमको सबको पसंद होता है स्वीट्स, जो है ना, स्वीट्स हम खाना चाहते हैं। तो मैं सबसे चाहती हूँ कि आप स्वीट्स को फॉलो करें। स्वीट्स में जो है वो S स्टैंड्स फॉर सनलाइट। ठीक है। सो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, हम इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करें, तो वी हैव टू फॉलो स्वीट्स। स्वीट्स में सबसे पहले सनलाइट है। सनलाइट का एक्सपोजर बहुत जरूरी है। आजकल जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, एवरीबडी इज लाइक इनडोर्स एंड sitting in AC rooms and not going out and like feeling कि अच्छा मेरे को तो धूप से बीमार हो जाएंगे, है ना। सो दिस इज बैड। धूप से कोई बीमार नहीं होता है। धूप रादर हमें बीमारियों से बचाती है। 100 तरह के स्किन कैंसर, 100 तरह के बोन प्रॉब्लम्स से हमको वो बचाती है। आपको नींद आने के लिए भी धूप की जरूरत है। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो धूप से ही हमारी बॉडी सेरोटोनिन बनाती है, हार्मोन, उसी से मेलाटोनिन बनता है ताकि हमको नींद आ सके। तो अगर जिसको नींद नहीं आती है उसको भी बहुत देर धूप में, मतलब बहुत देर मतलब 10-15 मिनट्स यू मस्ट स्पेंड एवरी डे इन सन। और फिर इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन सबको रहता है कि सुबह करें शाम को करें। तो सुबह शाम की, सन इज अ सन। तो आप किसी भी टाइम जब सन में जाते हैं, जब भी व्हेन यू कैन बेयर, व्हेन यू हैव टाइम, सो इट्स गुड कि डू सम गार्डनिंग इन द सन, डू सम वॉकिंग इन द सन, maybe do some talking in the sun, you can walk and talk and you आजकल टाइम सबके पास कम है, so everybody wants to do multitasking। तो आप सारे काम साथ में करते जाओ, बट देन सन इज फ्री। तो सन तो है ही है। अगर आप बाहर निकल गए हैं तो सन तो डायरेक्ट आएगा ही। तो 10-15 मिनट्स का
sun every day, every person must take for good vitamin D, for good sleeping, and protecting so many diseases, है ना? तो वो S is for sunlight, W is for water. जैसे मैंने कहा पानी, अगेन हम लोग राजस्थान में रहते हैं तो हमें लगता है शायद पानी यहाँ पे कम है, तो हमको पानी नहीं पीने का है, मतलब आई हैव सीन पीपल जो कि 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास भी पानी पीते हैं दिन भर में, उनको पास टाइम ही नहीं है कि हमको तो प्यास ही नहीं लगती है कि यू नो मैनी रीजंस पीपल हैव। तो उस पानी को बहुत बहुत जरूरी है। पानी वी ऑल नो इट इज 70% ऑफ आवर बॉडी। तो जो 70% है आपकी बॉडी जिससे बनी हुई है, उसको 70% रिप्लेनिश भी करना पड़ेगा। पानी हम सबको पता है वो डिटॉक्स करता है, सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आज के जमाने में सब हम मेटाबॉलिज्म की बातें करते हैं, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर मेटाबॉलिज्म, तो पानी सबसे सस्ता आसान तरीका है। आप खूब सारा पानी पिए, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना है। वो किताबों में पढ़ के 8-10 लीटर चल रहा है, बहुत 8-10 ग्लासेस बहुत दिन से हम सुन रहे हैं, बट 8 to 10 ग्लासेस जो है वो वर्ल्ड वाइड है। जहाँ पे अमेरिका में जो ठंड में बैठा है वो भी 8 to 10 पी रहा है, और यहाँ हम ड्राई जोन में राजस्थान में बैठे हैं, हम भी 8 to 10 पी रहे हैं। ये चीजें वर्ल्ड वाइड कॉमन नहीं है। वी हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस ऑल्सो समवेयर। we whenever we read some, ये जो पैरामीटर्स जब हम पढ़ते हैं ना, so we must use our own brain also, कि ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं वो वर्ल्ड ओवर बने हुए हैं। अब जो साइबेरिया में रह रहा है वो भी 8 to 10 ग्लासेस पी रहा है, और जो यहाँ रह रहा है या दुबई में रह रहा है या ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो भी सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। वी आर इन अ ड्राई क्लाइमेट, तो हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए, अराउंड 3 to 4 लीटर्स। और पानी पानी उसमें भी टेम्परेचर और वो और इतना इतना मैटर नहीं करता है हमको। अभी एक्चुअली मैं सबको जब हम करेक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम सीधा ही वो पीएचडी लेवल की बातें करने लग जाते हैं कि अच्छा अच्छा अभी तो जो करना है वो बेस्ट ही करना है। तो वो उस चक्कर में हम जीरो भी, मतलब 1 भी नहीं कर पाते हैं उस ऊपर, मतलब केजी लेवल पे जब हम हैं, तो वी मस्ट बिगिन फर्स्ट, देन वी कैन डेफिनेटली वंस वी स्टार्ट ड्रिंकिंग देन वी कैन थिंक अबाउट इस तरह का पानी उस तरह का पानी, बट देन फर्स्ट थिंग इज वी मस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। सो आप जब भी कभी पी सकते हैं पूरे दिन भर में, यू मस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वो ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, मटकी का भी हो सकता है। आरओ डेफिनेटली आई विल नॉट सजेस्ट। आरओ का पानी बहुत एसिडिक होता है, तो जिनके यहाँ आरओ लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा अभी दोबारा सोचना चाहिए, रीड अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, कि आरओ का पानी जब तक कि बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है आपके एरिया में, अगर बहुत ज्यादा पानी में केमिकल्स और वो सब आ रहा है, तभी आपको आरओ की जरूरत है, और उसको भी मिक्स करके पिए, कुछ और सोल्यूशन ढूंढे। नहीं तो सिंपल फिल्ट्रेशन इज वेरी गुड। उससे पानी नॉर्मल पीएच पे रहता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। देन कम्स द फूड पार्ट, है ना, जो हमें खाना खाना है वो दैट हैज टू बी अ बैलेंस्ड डाइट। जो फर्स्ट ई है, स्वीट्स में हम जा रहे हैं, तो ई फर्स्ट ई जो है, इट इज अबाउट ईटिंग गुड, ईटिंग गुड एंड ईटिंग बैलेंस। तो उसमें हमें खाना जो है वो इट हैज टू बी फ्रेश। फ्रेश जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश का मतलब है जितना ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो डायरेक्टली फ्रॉम नेचर हमको मिलते हैं, वो हमें खाना ज्यादा से ज्यादा। हमारा 70% एक्चुअली क्या हो गया, कुकिंग और बहुत लॉट ऑफ
culinary skills सबके पास सबने डेवलप कर लिया, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट देन उसको 30% ऑफ द टोटल फूड ही रहना चाहिए। आप 30% में अपनी culinary skills दिखाइए, 70% शुड रिमेन रॉ। आप जितना कुछ भी है अपना खाना जो पूरा दिन भर में खा रहे, 70% यू मस्ट ईट रॉ, फ्रेश, है ना। तो जहां से भी आप खरीद रहे हैं, इट शुड बी गुड एंड है ना, वो खराब नहीं हो, सड़ा हुआ नहीं हो। तो वो चाहे वो मतलब जो सैलड के रूप में हम खा सकते हैं बहुत सारा, और नहीं तो फ्रेश, टोटल फ्रेश नहीं भी हो सकता तो मिनिमम कुकिंग हो, मिनिमम कुकिंग हो उसमें, बस काट के जरा सा कुछ 2 मिनट गैस पे, जितना कम रहेगा खाना उतना ज्यादा हमारे लिए वो अच्छा होता है। जितनी देर गैस पे या किसी भी कुकिंग मीडियम पे अगर वो हमारा फूड, जितनी देर कुकिंग होती है, सीमा केक को बेक होने में कितनी देर लगती है? 40 minutes minimum. 40 मिनट्स, है ना। Yeah. और एप्पल को कितनी कुकिंग करते हो? Apple we can eat directly. यू कैन ईट डायरेक्टली, तो मेरे ख्याल कुछ नहीं, जीरो कुकिंग है ना। ओके, तो ये जीरो है और वो 40 मिनट्स है, ठीक है। जब आप केक खाते हो तो आपको लगना चाहिए कि 40 मिनट्स इसकी कुकिंग हुई है, 40 मिनट्स इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू हीट। जब हीट से एक्सपोज होती है कोई भी चीज, अदरवाइज ऑल्सो केक में कोई ज्यादा न्यूट्रिशन होता भी नहीं है, सो वी ईट दैट फॉर टेस्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर टेस्ट, टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो 30% पार्ट ही आपका फूड का होना चाहिए। सो जितनी भी हम, जैसे कोफ्ते बनाते हैं तो हम घिया को पहले कद्दूकस करा, फिर उसको मिक्स करा, फिर उसको फ्राई करा, फिर उसको वापस से सब्जी में तला, यू नो, सो मल्टीपल कुकिंग हो जाती है। सो स्टीमिंग इज अ गुड ऑप्शन। आप सिंपल छोटा सा बॉईल कर लीजिए, छोटा सा उसको स्टीम कर लीजिए किसी चीज को। So more of those kinds of food you must eat. So fresh or near fresh should be our food. एक्चुअली फूड जो होता है वो जो फ्रेश होता है वो ही फूड होता है, बाकी सब कुछ टेस्ट होता है ना। उसके अलावा जो भी हम खा रहे हैं वो टेस्ट के लिए खा रहे हैं। एंड देन What इट हैज about टू बी rajma, लुक। chole, which we boil and mix? यस, हाँ, तो बस बॉइलिंग इज वन पार्ट। फिर हम उसको लॉट ऑफ मसाला वसाला डाल डूल के, तो जब उसकी सेकंड कुकिंग भी तो करते हैं। बॉइलिंग कर सकते हैं ना हम, कच्चा तो नहीं खा सकते हैं डेफिनेटली। सो सम फूड नीड्स सम कुकिंग, लेकिन Yes. सम कुकिंग का मतलब मल्टीपल कुकिंग भी नहीं है ना। सो यू कैन जस्ट बॉइल इट, मेक इट सॉफ्ट एंड इजी टू च्यू, एंड देन यू कैन ईट। You can make a salad out of your rajma. You can make salad out of your chana. You can do minimum cooking. उसमें थोड़ा सा मसाला डाला, उसमें से थोड़ा सा नमक नींबू मिर्ची डाला, and then you can eat. ठीक है। So it has to be natural and minimum cooking, And and then one it more has to be thing, local. Yes. कड़ी है, and what about proteins? I mean, क्या मतलब Yes. all that? See, for that I'm giving you 30% window है ना आपके पास, 30% की विंडो है ना। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि मेरे 30% की विंडो में ये आ जाएगा, एंड देन 70% हम इधर से लेना है ना। एंड देन इट हैज टू बी लोकल। जितना चीजें हैं लोकल, अब मैं देखती हूँ लोग, यू नो, नाउ वी ट्राई टू ईट एवरीथिंग इंटरनेशनल। जो हमारे पास सारी चीजों के, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ था, तो फिर क्या हो गया कि सारी चीजें घूम के इंटरनेशनली आने लगी हैं। मोरिंगा हम हमेशा से सेंजने यहाँ पे राजस्थान में जयपुर में खूब आराम से कैर सांगरी और सब कुछ मिलता है। वो सब भूल के अभी लेटेस्ट मैं सुन रही हूँ कि अभी क्या हो रहा है, कटहल, अभी थोड़े दिन में कटहल का बबल बर्स्ट होने वाला है। कटहल पे पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, एंड कटहल इज नाउ ऑल्सो अ सुपर फूड। अभी क्या, कटहल हम इतने सालों से यहाँ कोई नहीं खाता था, अरे कैसी शक्ल है क्या नहीं है, यू नो, वी हैव सो मेनी प्रेजुडिसेस विद फूड।
फूड के मामले में हमारे को सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसकी शक्ल ऐसी है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसकी स्मेल ऐसी है, ये तो बीमारों का खाना है. वी हैव लेबल्ड फूड विच इज वेरी बैड. वो क्या करता है कि जिसने खाया भी नहीं है ना, उसको पहले से ही पता है कि ये कुछ गड़बड़ है. सो What about different, दिस इज वेरी different, बैड. दिस नीड्स टू बी. या जो जैसे जवार की रोटी है, बाजरे की रोटी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये ना कि ये करना चाहिए, ग्रेन्स. यू शुड हाँ स्टॉप हाँ. दिस, एंड कि इसमें इसके बारे में क्या है? देखो, वी कैन ईट एवरीथिंग, वी मस्ट ट्राई एंड ईट एवरीथिंग. मैं हमेशा, मेरा सब्जी वाला जो होता है, आप अपने किसी भी सब्जी वाले के पास जाके देखोगे, वो कम से कम 25-30 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स ही ऑलवेज ब्रिंग. है ना? उसमें करौंदा भी होता है, ककोड़ा भी होता है, वो परमल, परमल का छोटा वाला क्या होता है, एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम. मतलब यू नो, अभी एक वो ककड़ी आ रही है, बरसाती ककड़ी होती है, 10 तरह का खीरा, मतलब खीरा होता है. इतने सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं, आप देखोगे वो आपके घर में कभी आते ही नहीं है, आप कभी खरीदते ही नहीं हो. आप तो खाली भिंडी, मटर, आलू, गोभी, प्याज लेके वापस घर आ जाते हो. अगली बार फिर जाते हो, फिर वही गोभी, आलू, भिंडी, कोई को टिंडा घिया भी खरीदता है, बस वो फिर वापस आ जाते हैं. वे तोरी हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, वो हमारे हस्बैंड नहीं खाते हैं, करेला हमारे बच्चे नहीं खाएंगे. तो वी डोंट इवन बाय, वी डोंट एक्सपेरिमेंट, वी डोंट ट्राई. जबकि नया मोबाइल आ जाए तो फटाफट हर जना जल्दी से खरीदेगा, और अच्छा अच्छा ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ये नई ऐप आई है. वी डोंट यू नो फील कि अरे ये तो मैंने कभी यूज ही नहीं करी है, तो बल्कि नहीं यूज करी है तो वी विल ट्राई एंड यूज इट. कि ये मुझे कैसे नहीं आता, ये वाली ऐप मुझे क्यों नहीं पता है, ये वाला टेक्नोलॉजी मुझे क्यों नहीं पता है. सो टेक्नोलॉजी के लिए वी आर रेडी टू लर्न. बट फॉर व्हेन इट कम्स टू फूड, वी आर सो मच यू नो, हमने अपने आप को बिल्कुल बंद कर रखा है कि नहीं नहीं, ये तो हमारे घर में खाते ही नहीं है, ये तो हमारे घर में आता ही नहीं है, ये तो बैन है. मतलब कितने सारे लोग हैं, उन्होंने कभी बैंगन ही नहीं खाया है. कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैंने आई कम अक्रॉस एक फैमिली जो कि खरबूजा ही नहीं खाते हैं, बिकॉज उनको स्मेल, बोले हमारी मम्मी ने यही सिखाया है कि खरबूजा, बदबू आती है खरबूजे से. अभी हम सब लोग खाते हैं खरबूजा, हमको तो कोई बदबू नहीं आती. लेकिन जो फैमिली है, पूरी फैमिली, उनके घर में कभी खरबूजा आया ही नहीं. तो अभी इट इज नॉट अ फैक्ट. सी, अगर फैक्ट होता तो हम सब कैसे खाते, हम जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से उसमें से 90% लोग खरबूजा खाते ही होंगे, तो हमको तो बदबू नहीं आती है. सो दिस इज नॉट ट्रू. तो एक फैमिली खरबूजा ही नहीं खा रही है इसलिए क्योंकि उनको उनकी मम्मी ने सिखाया है कि खरबूजे में बदबू आती है, उनके घर में कभी खरबूजा नहीं आता है. So this is bad. We have to eat whatever is available. Local जो है, अपने prejudices छोड़िए. है ना? जैसे हम नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स में भी आपस में बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग्स्ट ह्यूमन बीइंग्स कि ये छोटा है, कि ये बड़ा है, कि ये गोरा है, कि ये काला है, कि ये इस फैमिली का है, ये उस फैमिली का है. हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. ये हम No सिखाते woman, हैं ना. no male, no female, no discrimination. नो Everyone is a मेल, human नो being. फीमेल, कोई डिस्क्रिमिनेट. हाँ, Everyone कितने is a आराम human से, being. अच्छे से ये बात समझ में आती है ना, कितने जल्दी से समझ में आ गई कि हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ह्यूमन बीइंग में. लेकिन हम वेजिटेबल्स में कितने आराम से डिस्क्रिमिनेट करते हैं. अरे बैंगन ऐसा है, इसकी तो शक्ल ही कितनी खराब है. अरे आपने उसको शक्ल ही देख के डिस्कार्ड कर दिया है. तो दिस इज सो बैड. वो भी नेचर का पार्ट है, वो नेचर है, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. इट इज फॉर यू, इट इज फॉर यू टू यूज इट. तो आपको उसको ऐसे नहीं राइट ऑफ करना है. अनलेस एंड अनटिल यू आर एलर्जिक विथ समथिंग, आपको किसी भी चीज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है. सो ट्राई एंड ईट लोकल. ऐसे पढ़ पढ़ के और कि एवोकाडोज ही खा लो, और ये जुकिनी ही खा लो. से जुकिनी के हमारे पास तो ऑलरेडी इतने तरह के खीरे, इतने तरह के ये क्यूकम्बर्स आते हैं. All I'm not against the international food, but what I'm saying is don't spend so much on. Sometimes it is good. आपके घर में पार्टी है, आप कोई स्पेशल कुकिंग कर रहे हो,
अगेन दैट इज लाइक 30%, है ना। 30% ऑफ स्पेशल कुकिंग आप कर सकते हो, लेकिन 70% यू हैव टू ईट रॉ एंड लोकल। लोकल चीजें खाएं, वो हमारी बॉडी को ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट होती हैं और अच्छे से च्यू करना है ना। फिर सब तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, सब चीजें खाएं। nuts में है like there is a thing that we have to soak it, or you know कि how should we eat nuts Okay. like sort देखो ऐसा like है कि नट्स जो होते हैं, नट्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप उसको च्यू नहीं करोगे ठीक से, तो वो ऐसा हमारी बॉडी में चले जाएंगे। फिर अंदर बॉडी में तो दांत नहीं है ना, वो अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, जिनको उन पे एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो च्यू करने से तो आधा जो हमारा सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, तब वो हमारी बॉडी बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है। तो अगर जो इंसान च्यू कर सकता है अच्छे से, जिसके पास दांत है, तो उसको तो भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, या एज फैक्टर है, या बहुत छोटे बच्चे हैं जो अच्छे से चबाएंगे नहीं, आपको पता है कि आपका 2 साल का बच्चा, उसके तो खैर दांत भी इतने नहीं होंगे, लेकिन जो थोड़ा बड़ा भी 5 साल का, वो चबाएगा ही नहीं, वो ऐसे ही अंदर ले लेगा। तो उसको हम भिगो के सॉफ्ट करके, पहले हम सॉफ्टनिंग बाहर कर लेते हैं, फिर हम उसको दे देते हैं खाने को। आपने देखा होगा, और बहुत बहुत छोटे बच्चे को तो हमको पीस के भी देना पड़ता है बादाम, है ना। हम सॉफ्ट करते हैं और फिर उसको घिस देते हैं, तब देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो चबा ही नहीं सकता। और छोटा बच्चा जिसके दांत भी नहीं है या कम है, तो वो तो चबा नहीं सकता है, तो हम सॉफ्ट कर देते हैं। तो जो चबा सकता है, दैट पर्सन कैन च्यू इट प्रॉपरली एंड देन ईट इट। आप सॉफ्ट करके बिना भिगोए भी खा सकते हो, है ना। तो वो सब चीजें खाएं। फिर देयर आर सम फूड विच इज लाइक एडिशनली नेचर ने हमको दिया है मेडिसिन बना के, है ना, जिसमें आंवला है, एलोवेरा है, टर्मरिक है, जिंजर है, ऑल आर स्पाइसेस, तुलसी है, मिंट है, लेमन है, तुलसी है, हाँ जी, तुलसी तुलसी, बिल्कुल तुलसी है, अमरांथ है, मेथी है, मोरिंगा है, कोरिएंडर, मिंट, लेमन, वीट ग्रास, कोकोनट वाटर, बीट रूट, ये सब चीजें ऐसी हैं, ये अपने आप में मेडिसिन है। सो ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट इंक्लूड इन आवर डाइट। इंक्लूड में कभी कभी क्या होता है, अब ये इतनी सारी, मतलब मैं आई कैन नॉट नेम एवरीथिंग। तो अभी अगर 15 चीजों के तो नाम मैंने ले लिए, और ऐसे ही और 100 चीजें और होंगी, तो some people what they do is like they try and eat everything. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको सारी चीजें एक साथ एक दिन में नहीं खानी कि ये गुड है ये भी खा लो, ये गुड है ये भी खा लो, ये गुड है ये भी खा लो। सब कुछ मॉर्निंग में स्टार्ट करते 10-15 चीजें गुड 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 सब खाते जाओ। तो व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक, एक चीज का पूरा असर हमारी बॉडी पे होना चाहिए। जैसे हम कपड़े भी, अगर हमारे पास 10 अच्छे कपड़े हैं, तो वी डू नॉट वेयर वन ओवर द अदर। एक दिन में एक कपड़ा पहनो, अगले दिन में दूसरा अच्छा कपड़ा पहनो, तीसरे दिन में तीसरा अच्छा कपड़ा पहनो। सो वी डोंट डू दिस कि एक ही सारे, बहुत अच्छी लिपस्टिक हमारे पास 10 लिपस्टिक अच्छी हैं, तो एक के ऊपर एक थोड़ी लगाएंगे। एक दिन में तो एक ही लिपस्टिक लगाएंगे, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम हम दूसरी लिपस्टिक लगाएंगे, है ना। सो इतने सारे फूड हैं विच आर गुड, बट देन वी मस्ट ईट वन थिंग एट अ टाइम, है ना। एक दिन में एक चीज खाएंगे तो वो पूरी तरह से यूज होगी। देन हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको हाइजीन का ध्यान एट द टाइम ऑफ कुकिंग, ईटिंग, सब ये बहुत बेसिक है, हमको ध्यान रखना है ना। सो उसके बाद नेक्स्ट ई, सेकंड ई कम्स एज एक्सरसाइज। वैसे फूड में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि देर आर सम फूड विच वी शुड नॉट ईट। वैसे मैं नॉर्मली आई अवॉइड दिस कि हमको सब कुछ खाना चाहिए लिमिट में, लेकिन देर आर सर्टेन फूड विच यू नो गिव्स लॉट ऑफ टॉक्सिन्स टू आवर बॉडी। लाइक बहुत सारा बात है चाय की। चाय बहुत सारा, आराम से सब लोग खूब सारी चाय पीते हैं और वो उनका दिन स्टार्ट ही चाय से होता है, सब कुछ है, बट चाय का जो टैनिन कैफीन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारा खराब है। तो वी मस्ट अवॉइड दिस टी कॉफी टाइप की चीजें, अल्कोहल है, टबैको है, दीज आर प्रेजर्वेटिव्स हैं। जितने प्रेजर्वेटिव्स वाला जो खाना है
जो पैकेज फूड है वो हमको कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए अपने आप में हमारी बॉडी का दुश्मन है ना। तो दुश्मन को हम ऐसे नहीं अपने अपने पास नहीं बुलाते हैं, अपने अपने हाथों से अपनी ही बॉडी को खराब। जैसे अगर हमारा घर है, ये दीवार मेरे घर की है, तो मैं खुद ही उसको तोड़ने लग जाऊं। वी डोंट डू दिस, वी डोंट डू दिस विथ एनीथिंग। हम अपने घर को, अपने स्लीपर्स हैं, अपना कोम है, अपने अपने स्पेक्स हैं, मैं अपने हाथों से उसको थोड़ी खराब करूंगी अगर उसको खुद ही नीचे फेंक रहे हैं उसको। वी डोंट डू। आई आई एम सीइंग समबडी ड्रिंकिंग टी। अभी ये जो चाय का कप है, हम कभी ऐसा करेंगे इसको अपने हाथों से ही फेंक दिया नीचे? नहीं, हम करेंगे कभी भी ऐसा। हमको पता है वो टूट जाएगा। बट देन हमारी बॉडी को हम आराम से अब्यूज करते हैं, हमको पता है कि ये खराब करेगा, फिर भी हम वो सब करते हैं, है ना। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जो बॉडी हमारी है, जो कप तो फिर भी दूसरा आ जाएगा। अगर कप हमने तोड़ दिया, ये स्पेक्स मैंने तोड़ दिए, तो ये दूसरे भी आ जाएंगे, बॉडी तो नहीं आएगी। मेरे पैनक्रियाज मेरे ही हैं, वो वन टाइम ही है। मेरी आंखें मेरे ही हैं, मतलब वो वन टाइम ही है। लंग्स है, लिवर है, सब बॉडी बोन्स सब कुछ जो है ना, वो वन टाइम ही है, तो वो दोबारा नहीं आ सकता। तो हम उनकी केयर नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टंग। एक टंग है जिसने सब कुछ गड़बड़ कर रखा है, सिर्फ टंग के टेस्ट के पीछे वी डोंट कंसिडर द होल बॉडी। अब्यूज हम पूरी बॉडी को करते हैं, पूरी बॉडी हमारी खराब होती है। तो जो ये कुछ चीजें हैं हमको अवॉइड भी करनी चाहिए। So second E was exercise. Exercise is very important. एक्सरसाइज हमको 30-40 मिनट्स के लिए पर डे जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज का भी जो वर्ड है ना, एक्सरसाइज, फिर लगता है कि अच्छा मुझे तो खूब सारी कसरत, कुश्ती जैसा ही कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करें तभी होता है। सो दिस इज लाइक, दिस इज अगेन अ मिथ। मिथ क्या, ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि आप, हर इंसान का अपनी बॉडी का एक लिमिट होती है और एक तरीका होता है, आपका लाइफस्टाइल का एक तरीका होता है। जो भी आपकी लाइफस्टाइल में फिट होती है चीज, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो डांस हो इवन, या आप कोई हैवी एक्सरसाइजेस भी अगर आप कर सकते हैं तो बॉडी में। लेकिन हैवी एक्सरसाइजेस में मैं कॉशियस करना चाहती हूँ सबको कि अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस की तरफ जा रहे हैं तो आप, यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज। ऐसा नहीं होता कि कल से मैंने जिम की मेंबरशिप ली और कल से मैं शुरू हो गई कि बस सीधे ही, मतलब हम लेवल जैसे होता है ना, थर्ड गियर में ही शुरू हो गए। कार भी हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर तक जाना होता है। वी डोंट डायरेक्टली स्विच टू थर्ड गियर, है ना। तो एक्सरसाइजेस में भी वो ग्रेडिंग करके रखिए अपने आप को, ग्रेजुअली पहले इस लेवल, 0 लेवल, फिर 1 लेवल, 2, 3, 4, ऐसे करके जितना हम खुद कर सकते हैं, आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है उस लेवल से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सुबह, शाम, रात, कभी भी अगर हम कर, इट इज नॉट नेसेसरी कि सुबह ही करनी है। बहुत सारे लोग सुबह नहीं कर पाते हैं, तो सुबह नहीं कर पाते तो आप शाम को करिए। इट इज बेटर कि आप, चाहे कम भी फायदा होगा तो फायदा तो होगा, तो 0 से तो 1 ही बेटर होता है। अगर हम सुबह नहीं कर सकते फॉर एनी रीजन, तो हम दोपहर में करें, शाम को करें, जो कुछ भी कर सकते हैं। बॉडी का फिजिकल मूवमेंट जरूरी है आज के जमाने में, क्योंकि हम, जो हमारा प्रोफेशन है वो ज्यादातर सिटिंग हो गया है। प्रोफेशन, हम लोग अब किसान नहीं रह गए जो खेती करने के लिए खेतों में जा रहे हैं और हल चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो हमारा प्रोफेशन अब रहा नहीं है। सो वी जस्ट सिट एंड डू आवर वर्क। तो अब हमको इसलिए अपनी बॉडी को यूज करने, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी बहुत सारे हॉर्मोन्स जनरेट करती है। जो लोग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी या वॉक या कोई चीज नहीं कर रहे हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो सारे एंजाइम्स, वो सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में नहीं बन रहे हैं।
जब नहीं बन रहे हैं तो आप समझिए कि उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनको जो वर्क करना है वो नहीं करेंगे, तो हमको कोई ना कोई डिसऑर्डर या डिसएलमेंट होगा। तो हमको अपने सारे बॉडी के सारे फंक्शंस को प्रॉपर करने के लिए सभी चीजों की जरूरत है, तो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। देन कम्स टी। जो टी है वो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री हमको रहना है। माइंड बॉडी सोल सबसे टेंशन फ्री रहना है। आप सब लोग बहुत अच्छा इस पे काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अपना माइंड को एट पीस रखिए, अपनी बॉडी को अच्छा खा के और प्रॉपर नेचुरल फूड खा के और उसको पूरा डाइजेस्ट करिए, तो बॉडी भी खुश रहे और सोल के लिए भी अच्छा सा कोई मेडिटेशन योगा जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, सो दैट आप स्ट्रेस में ना आए। आ भी रहा है तो ये सब चीजें एकदम प्रोवन सॉल्यूशंस हैं। अगर इवन इफ यू आर इन स्ट्रेस, अगर आपका खाना पीना बहुत अच्छा है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को कम करेगी, है ना। और स्ट्रेस में तो नॉर्मली लोग फिर बहुत सारी चाय पीने लग जाते हैं, वो जो कि वो और स्ट्रेस को बढ़ाएगा, है ना, कि अभी तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो अभी तो चलो चलो चाय पियो, है ना। तो ये हम लॉन्ग टर्म में ये चीजें हमें नुकसान ज्यादा करती हैं। अगर आप अच्छा सा एक नेचुरल एप्पल या बनाना, स्ट्रेस में बनाना बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप एक बनाना खा लीजिए, तो आपका स्ट्रेस बहुत, इट वर्क्स एज अ स्ट्रेस बस्टर। तो वो आप रखें। और ये इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ये एक दिन की चीज नहीं है। जब लॉन्ग टर्म हम लाइफस्टाइल अपना ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपको स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छे से आने लग जाती है, सारी चीजें इन प्लेस हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बिहेव्स नेचुरली वेरी गुड एंड एट पीस। वो एट पीस ही रहती है, कितना भी स्ट्रेस आ जाए आपको वो फील नहीं होगा। And then the Sorry, last Archana ji, I have to essence, interrupt. It's already yes, 7:14 and अच्छा, we end the session at 7:15. So, okay, can we quickly suggest कि हम कितनी diets, therapeutic diets जैसे थी और combination of course आप हमारे group में like WhatsApp में we have so many questions, you can answer them and okay, like there are things which people want to know. But right now, I think we just sum up the okay. session. So yes, I just sum up with last week's का S है, that is for sleep. So 8 to 9 hours की sleep बहुत जरूरी है. I will not elaborate on it. So I can take up a few questions. Yeah, so if anybody has a question, it's already 7:15. Yeah. Seema, I want to Yeah. ask. hello, सीमा, कैन वी 5 मिनट के लिए हम लोग बढ़ा सकते हैं? हम लोग 7:20 को वहां पे जाएंगे क्रिएशन। Okay. So right now, I mean, I think you can just ask which are important questions, like the questions which have come up. Like Shalaka is here. Yeah, Shalaka I is also want here. to- Gitanjali here, and Seema, you and me. Your four are here. yeah. So we can take the session at 7:20. We can continue with the session. So Yeah, we yeah. are just wanting. We can extend for another 5 minutes, not more. We have visualization also, so that's okay. Okay. So Okay. thank you for extending the time. So let's take up the questions one by one. So participants, you all come I up. have a questions. Yeah. Arjuna Di, Somebody I can wanted- read, हाँ. Gitanjali, Okay. you can Hello, read. hello, For hello, hello. SAT, I wanted to ask something. yeah, you can go ahead. Could you say something for acidity? I suffer from acid reflexes a lot of times. So could you Yes, suggest yes, something for that? Yeah, absolutely. Acidity आजकल के जमाने में it has become very common, है ना, क्योंकि हमारा वो पूरा वो लाइफस्टाइल खराब होने से ही एसिडिटी होती है। हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, है ना। बहुत क्विकली मैं आपको बताती हूँ कि एक तो आप पानी पीना बहुत अच्छे से शुरू करिए, आप अपनी स्लीपिंग हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करिए, और तीसरा, अगर आपको बहुत अभी इमिडिएटली रिलीफ चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, 1 चम्मच जीरा, कच्चा जीरा खा के और 3 ग्लास पानी पी लीजिए उसके ऊपर। ये तो क्विक फिक्स सोल्यूशन है ना, फॉर एसिडिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना डाइट को बैलेंस डाइट चाहिए, उससे एसिडिटी 100, आई मीन आई कैन गारंटी कि आपका वो एसिडिटी खत्म हो जाती है। एसिड रिफ्लक्स, इवन आईबीएस तक ठीक कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा रहता जीरा का पानी पीने Oh, so just Combination one more of foods. question. Just one more question. Something Hanji. for PCOD? PCOD is a hormonal thing. Normally ये आजकल वही लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, बट उसका सोल्यूशन वेट लॉस है. पीसीओडी का मैं आप सबको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो डोंट गो फॉर एनी मेडिसिन एंड ऑल. आप अपनी बॉडी को करेक्ट करिए, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करिए और वेट लॉस करिए. वेट लॉस से मतलब इट्स अ शॉर्ट थिंग वर्ल्ड वाइड, कोई भी और इसका ट्रीटमेंट नहीं है ना. सो बिकॉज इट इज नॉट अ डिजीज, इसका ट्रीटमेंट नहीं है. दिस इज जस्ट अ मैल फंक्शन ऑफ द बॉडी कि आपके हार्मोन्स पूरे नहीं बन रहे हैं. वेट उसका बहुत बड़ा रीजन है और वेट लॉस इसका सोल्यूशन है. तो आप अपना वेट लॉस करिए, पीसीओडी ठीक हो जाएगा. बिल्कुल Siddharth, पक्की you बात. have- Archana, want to ask Siddharth, you have a something? question, you can come up. Siddharth? ब्लड प्रेशर के लिए क्या फूड करना चाहिए? ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है और उसको अगर अपने को ब्लड हटाना है प्रेशर तो क्या करना ऑलरेडी चाहिए? है. देखिए ब्लड प्रेशर अगेन सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मेरे ये सारे स्वीट्स है ना, आप इसको फॉलो करिए, है ना. सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करिए, तो ब्लड प्रेशर नेचुरली ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. बट यस, फॉर द टाइम बीइंग आपको अभी क्योंकि ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप बहुत अच्छे से सोने मतलब नींद लीजिए. नींद लेने से बॉडी अपना रिकवरी और मेंटेनेंस का काम करती है, तो जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है वो सोने से आधी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं. ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो लोग कम सोते हैं उनको होता है. और अगर ईटिंग पैटर्न बहुत ज्यादा खराब है, अगर आप बहुत ज्यादा तेल घी खा रहे हैं और बहुत ज्यादा जो कुक्ड फूड खा रहे हैं, आप नेचुरल फूड की तरफ चले जाइए. अपने फूड को, अपनी जो खाने की प्लेट है उसको 70% जो है वो रॉ कर दीजिए, 30% फॉर टेस्ट कर दीजिए. आप यू विल सी ऑटोमेटिकली सी द डिफरेंस. So I'm sorry to interrupt, but Archana, want to ask one thing? it's the last, it's 7:19. We just have 1 minute. So I Just 1 suggest that minute, yes. everybody ask their question on the group. We can add Archana Di there, and she can Yeah. answer all the questions there. Yeah, So, absolutely. Seema, you want to Yeah, ask so Shalaka now to give the... Shalaka, I propose Thank you. Shalaka for the vote of thanks. So Okay. Shalaka, yeah, Yeah. over to you. So first of all, thank you, Archana ji, for enlightening and giving such a simple and important tips to how to improve our diet with the help of food, how we can reverse many diseases. And we are inviting you to join our group so that we can ask you various questions, and you can also experience Plan to Win. So thank you for coming to the space, and I especially want to thank Rajlakshmi and Nazar, because this is a part of a team, and we technical team and communication team, and they have supported me in this entire session. So thank you so much. Thank you so much for coming to this. So thank you all of Thank you, Archana and all the participants, and we will like to see you in each and every fitness session and the Plan to Win sessions. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Seema. you. Thank you. Yeah. Thank you. In the Archana. end, Thank you, Archana. Yeah. Okay, Yes. in the end, I just want to say a Chinese proverb that I've written. You must listen carefully. He that takes medicine and neglect diet waste the skills of the physician also. So you must understand this and take it very seriously. The diet is very important, even if you're taking medicine. Okay. So Okay, thank you. thank you for so this. much. Now Thank you so much for inviting me. Yeah. We'd Thank like you. you to Thank be you, the Seema part and of, everyone. Gitanjali. You are Geeta. so sweet. Thank you. Thank you. This Okay. has I made love my it. day. I love it. Thank you. I can't see you who has. Nazar, Thank you so Nazar, much. put on a video. He was throughout with the I video. say you are so sweet, SWEET. Thank you. That's a very good thing, Nazar. Okay. And you are actually That's sweet good. That's- also. That means you were listening very carefully. So, Yes, very Thank scary. you so We'll much. invite you, Archana, Man, to you our group. explained that so beautifully. It feels as if some a granny or a very close relative was explaining it.
It was wonderful, wonderful. Thank Thank you. you. Thank you so much. I can't see everyone, but then thank you so much. Yeah. It was Thank you. lovely coming here. Archana? Hanji, We would like you to be part of the next session of Plan to Win 5. Incidentally, it's starting in the next month, which is very nearby. So come be part of it. It will be brilliant for you and of course for all of us. And thank you definitely I'll be there. I'll be there. Thank you, Thank you, Vidanshi. Ji. Thank you, for everyone. everyone for attending. So we take, yeah. Thank you, Ji. Thank you so Thank you, much. Ji. Thank you, Ji. Thank you. Thank you. Thank you.